Morning student, myself Chirag Sukani from Rafael BBA College Wapi and I am going to teach you fundamental of economics subject. Now in last lecture or in last session we discussed about the consumer survey method. So I will give you a brief introduction again. So what is consumer survey method? It is also known as what? Survey of buyer intention. It means buyer का intention जाना जाता है. Under this method buyer का intention जाना जाता है रिगार्डिंग कि बायर कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, कितने प्राइस पे करना चाहता है, कौन सी क्वालिटी का करना चाहता है एंड सो ऑन. और ये कैसे किया जाता है? थ्रू पर्सनल कॉन्टैक्ट. एंड दिस कॉन्टैक्ट may be done through the personal interview, then mail or the postal survey or the telephonic interview. So there are three type of consumer survey method, that is complete enumeration survey method, sample survey method and the end use method. Now it is complete enumeration. Under this method all the potential buyer of the product are contacted, then they are interviewed, and the adding of all the individual demand we can get the total demand. That is what complete enumeration survey method. Then sample survey method. Under the sample survey method only few customers out of the total potential consumers are selected, then they are interviewed, and then average demand is calculated. After that, multiplying the total number of the consumers with the average demand, we can get the total demand. That is what sample survey method. And next is what end use method. Okay, this method it is used for forecasting the demand for the intermediate product. An intermediate product क्या होता है? Those product which is used for the manufacturing of the final product. So once the demand for the final product is estimated, on that basis demand for the intermediate products can be forecasted or estimated. Clear? Now today in this session we mainly discuss about the second method, that is collective opinion method. कलेक्टिव ओपिनियन मेथड. ओके, नाउ ये सेकंड मेथड है. सर्वे मेथड का फर्स्ट क्या था? कंज्यूमर सर्वे मेथड. सेकंड पॉइंट इज व्हाट? कलेक्टिव ओपिनियन मेथड. व्हाट इज कलेक्टिव ओपिनियन मेथड? नाउ अंडर दिस मेथड द मैन हु आर क्लोजेस्ट टू द मार्केट. कौन? दैट इज सेल्समैन. कौन मार्केट से एकदम क्लोज है? दैट इज सेल्समैन. आर क्वेश्चन एंड देन देयर रिस्पॉन्सेज आर एग्रीगेटेड. क्लियर? सो ये पर्टिकुलर मेथड में, दैट इज कलेक्टिव ओपिनियन मेथड में, किसको कांटेक्ट करना है? सेल्समैन को, यानी द पर्सन हु आर क्लोजेस्ट टू द मार्केट. कौन रहते हैं? सेल्समैन. उसको क्वेश्चन करना है एंड उसका रिस्पॉन्सेस जानना है. बिकॉज द सेल्समैन हु डील विद द प्रोडक्ट and are in constant touch with the changing trend of consumers demand as well as consumers reaction about the price change, quality change and so on. Now this method is known as what? Collective opinion method, because forecasts are based on aggregate opinion of the specialist in the field. So example, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बहुत सारे सेल्समैन हैं, ओके, जो मार्केट में कंटिन्यूसली घूमते रहते हैं. सो कलेक्टिव ओपिनियन मेथड में डिमांड फोरकास्टिंग कैसे करना है? जो पर्सन मार्केट में घूमते हैं, दैट इज सेल्समैन, उसको क्वेश्चन करना है और वो लोग के रिस्पॉन्सेज को जानना है. ओके, बिकॉज जो पर्सन सेल्समैन है ना, दे आर इन कॉन्स्टेंट टच विद द कंज्यूमर्स चेंज, यानी कंज्यूमर्स रिस्पॉन्स अबाउट द प्राइस चेंज, क्वालिटी चेंज एंड सो ऑन. इट मीन्स जो सेल्समैन है उसको पता है कि प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होने से कंज्यूमर्स का रिस्पॉन्स क्या है, क्वालिटी चेंज होने से कंज्यूमर्स का रिस्पॉन्स क्या है, एडवर्टाइजमेंट चेंज होने से कंज्यूमर्स का रिस्पॉन्स क्या है. ये हर एक कंज्यूमर्स का रिस्पॉन्स के बारे में किसको ज़्यादा पता होता है? सेल्समैन को पता होता है. तो सेल्समैन को कांटेक्ट करना है, उसका इंटरव्यू लेना है और उसके रिस्पॉन्सेस को जानना है एंड उसका अकॉर्डिंगली डिमांड को फोरकास्ट करना है. सो व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? कलेक्टिव ओपिनियन मेथड. This method is known as what? Collective opinion method, because forecasts are made on the basis of the aggregate opinion of the specialist in the field. मतलब खाली एक सेल्समैन को नहीं पूछना है, हमारे कंपनी के 10 सेल्समैन हैं, सो हर एक 10 सेल्समैन को पूछ के उसका कलेक्टिव ओपिनियन लेना है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? कलेक्टिव ओपिनियन मेथड. ओके, नाउ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कलेक्टिव ओपिनियन मेथड? Now this method is simple method and the less costly method. Why? Because जो भी सेल्समैन है वो हमारी कंपनी के अंदर के है, ओके, तो उसको तो एक्स्ट्रा फी नहीं पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना पड़ेगा
एंड जो भी सेल्समैन है वो इजीली हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, उसके पास से इमीडिएटली इंफॉर्मेशन आ जाता है. सो दिस मेथड इज व्हाट सिंपल मेथड एंड इट इज लेस कॉस्टली मेथड. Second advantage, it is useful for estimating demand for the new product. And whenever a company wants to introduce a new product और कंपनी को जानना है कि न्यू प्रोडक्ट का डिमांड क्या होगा, सो इन दैट केस दिस मेथड इट इज यूजफुल. ओके, सो दिस मेथड इट इज यूजफुल फॉर एस्टिमेटिंग द डिमांड फॉर द न्यू प्रोडक्ट. बिकॉज सेल्समैन से इंफॉर्मेशन लेना है और सेल्समैन को पता है कि कस्टमर्स न्यू प्रोडक्ट को फेवर करते हैं या नहीं करते हैं. सो न्यू प्रोडक्ट का डिमांड को एस्टिमेट करने के लिए दिस मेथड इट इज क्वाइट यूजफुल. नेक्स्ट, डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड यानी लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड. नाउ फर्स्ट लिमिटेशन और वन लिमिटेशन इज व्हाट, द फोरकास्ट मे नॉट बी रिलायबल if salesperson are not trained or knowledge in the experiment in this field it is limited. Now it is not reliable मतलब यानी जो भी ये मेथड से फोरकास्ट होता है वो रिलायबल नहीं है. ये मेथड से जो भी फोरकास्ट है दैट इज नॉट रिलायबल. नाउ रिलायबल मीन्स व्हाट, भरोसा पात्र. ओके, हम लोग वो उसके ओपिनियन के ऊपर मतलब एकदम क्या बोलते हैं ना, ट्रस्ट नहीं कर सकते. वाई, कौन से केसेस में, इफ जो भी सेल्स पर्सन है, सेल्स पीपल है, आर नॉट ट्रेंड, नया नया मार्केट में घूम रहा है, उसको कुछ पता नहीं कि कस्टमर्स का रिस्पॉन्स क्या है और आप उससे इंफॉर्मेशन लोगे. सो जो भी हमारा इंफॉर्मेशन आएगा वो एकदम ट्रस्ट वाला नहीं होगा, एकदम रिलायबल नहीं होगा. and knowledge and the experience in this field it is limited. Suppose मैं यहाँ पे मोबाइल फ़ोन के बारे में कुछ सर्वे करवाना चाहता हूँ. ओके, बट मेरे सेल्समैन के पास मोबाइल फ़ोन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मोबाइल के बारे में. उसको कंज्यूमर्स प्रोडक्ट के बारे में पता है, जो वेफर्स है, बिस्किट्स है, उसके बारे में पता है, बट मोबाइल के बारे में पता नहीं है. सो अगर मैंने उससे इंफॉर्मेशन जाना जिसके पास नॉलेज नहीं है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरा जो भी इंफॉर्मेशन आएगा वो रिलायबल नहीं होगा. सो अंडर दिस मेथड जो भी फोरकास्ट होता है इट इज़ नॉट रिलायबल इन केस इफ द सेल्स पर्सन आर नॉट ट्रेंड एंड नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड इट इज़ वेरी मच लिमिटेड. क्लियर? सो सेकंड मेथड इज व्हाट, collective opinion method. Now third method, experts opinion method. Third method is what, expert opinion method. Now here under this method obtaining the views from the group of specialists who are outside the firm, that is professional experts, market consultant and so on. Okay, so ये method में फोरकास्ट करना है फर्म को, और वो फोरकास्ट कौन से बेस पे करेगा, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप ऑफ द स्पेशलिस्ट हु आर आउटसाइड द फर्म. यानी ऑब्टेनिंग द व्यूज, ऑब्टेनिंग द ओपिनियन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ स्पेशलिस्ट हु आर आउटसाइड द फर्म, पर्टिकुलरली दैट इज प्रोफेशनल कंसल्टेंसी फर्म. ओके, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म. उससे नाउ ये जो स्मॉल सिटीज़ है वहाँ पे नहीं होता है, बट जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है या लार्ज सिटीज़ है वहाँ पे ये टाइप की ऑफिसेस रहती है. ओके, प्रोफेशनल कंसल्टेंसी, मार्केट कंसल्टेंसी फर्म, ओके, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म. नाउ दे ऑब्टेन द डेटा फ्रॉम द मार्केट. ओके, नाउ वेन एवर कंपनी वॉन्ट्स रेडीमेड डेटा ना, द कंपनी डायरेक्टली गो टू द ऑफिस, देन दे पे हायर फीस एंड ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन. That is called as what, experts opinion method. So under this method obtaining the views from the group of experts who are outside the firm, that is professional experts, market consultancy firm, management consultancy firm and so on. So demand is estimated on the basis of opinion of the experts other than the salesman. यानी सेल्समैन से इंफॉर्मेशन नहीं लेना है, बट एक्सपर्ट, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट से आपको ओपिनियन लेना है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है. सो दिस मेथड इट इज सूटेड इन अ सिचुएशन वेयर इंटरएक्टेबल चेंजेस
आर अकरिंग, ओके, यानी ये मेथड ज़्यादा कौन से केसेस में ज़्यादा यूज होगा? इन दैट केस वेयर देर इज अ चेंजेस आर मोर, ओके, एकदम ड्रास्टिक चेंज होता है, इमीडिएट चेंज होगा, वो केसेस में हम लोग को ये मेथड यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ अ टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, हम लोग को पता है कि डे टू डे टेक्नोलॉजी इमीडिएटली चेंज होता रहता है। सो अगर आपको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, वी कैन यूज दिस मेथड, दैट इज एक्सपर्ट्स ओपिनियन मेथड, बिकॉज जो भी एक्सपर्ट्स है उसको इमीडिएट पता चलेगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी आ सकती है और कौन सी नहीं आने वाली है। ओके, दैट इज व्हाट एक्सपर्ट्स ओपिनियन मेथड। सो उसके एडवांटेजेस क्या है? फोरकास्ट कैन बी मेड क्विकली। Why the forecast can be made quickly? Because we directly go to the office and collect the information from the office by paying the fees. So जो भी आपका इंफॉर्मेशन है वो इमीडिएट आपको मिल जाएगा। सो जो भी एज अ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी उसको फोरकास्ट करना है, दे कैन इमीडिएटली फोरकास्ट, दे कैन मेक इमीडिएट फोरकास्ट। दैट इज वाई अंडर दिस मेथड द फोरकास्ट कैन बी मेड क्विकली। Second, this method it is suitable for the new product, and whenever company wants to introduce a new product na, so in that case also this method it is suitable, okay, because जो भी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स है, स्पेशलिस्ट एजेंसी है, उसको इमीडिएट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। सो अगर कंपनी को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, सो कंपनी क्या करेगी? ये मेथड से नया प्रोडक्ट का डिमांड फोरकास्ट कर सकता है। ओके, एंड डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है? दिस मेथड इट इज एक्सपेंसिव। Why it is expensive or costly? Because we have to pay the heavy fee to the group of expert or the professional management consultancy firm. Okay, because आप उसको heavy fee पे करोगे ना, तो ही वो लोग आपको information collect provide करते हैं। This method is called as what? Experts opinion method. And last, fourth method, that is collective opinion, that is fourth method, that is controlled market experiment method. Fourth method, that is controlled market experiment method. Now what happened in this method? Under this method certain demand determinants are selected. Now demand determinants is what? The factors affecting demand. Say example, price, quality, advertisement are selected. Okay, यानी जो डिमांड को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपको सिलेक्ट करना है, दैट इज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, advertisement expenditure and so on. Now among this, choice is made to select only one factors, and then experiments are conducted to know the likely changes in demand, and assuming that other factors are remaining constant, then after consumers behavior in the market is observed and recorded. ओके, सो ये मेथड में क्या करना है कि जो भी डिमांड को फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो सिलेक्ट करना है, देन आफ्टर choice is made to select only one factors, and assuming other factors are remaining constant, and then experiment are conducted to know likely changes in demand. आया समझ में? से एग्जाम्पल, आई एज ए मैनेजमेंट ऑफ कंपनी मैंने ये मेथड यूज किया, दैट इज कंट्रोल मार्केट एक्सपेरिमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा काम क्या होगा? आई हैव टू सिलेक्ट ऑल दोज फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिमांड. सो मैंने फैक्टर्स सिलेक्ट कर लिया, दैट इज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एडवर्टाइजमेंट ही अफेक्ट करेगा. नाउ चॉइस इज मेड टू सिलेक्ट ओनली वन फैक्टर. से एग्जाम्पल मैंने प्राइस को सिलेक्ट किया, whereas other factors को क्या करना पड़ेगा? the other factors remaining constant, that is quality, advertisement, it remaining constant. okay, then प्राइस को सिलेक्ट करके मुझे एक्सपेरिमेंट करना है. सो मैंने प्राइस के बारे में एक्सपेरिमेंट किया, दैट इज रिडक्शन इन द प्राइसेस. ओके, मैंने प्राइस को क्या किया? रिड्यूस किया. एंड देन एक्सपेरिमेंट आर कंडक्टेड टू नो द लाइकली चेंजेस इन डिमांड. यानी प्राइस रिड्यूस किया तो डिमांड में क्या अफेक्ट हुआ? डिमांड इंक्रीज हो रहा है या डिमांड स्टेबल है या डिमांड डिक्रीज हो रहा है, ये मुझे जानना है. एंड देन ये सब जानने के बाद आई एज अ मैनेजमेंट ऑफ कंपनी मैं एस्टिमेट करूंगा कि इन फ्यूचर डिमांड क्या हो सकता है. दिस इज व्हाट कंट्रोल्ड मार्केट एक्सपेरिमेंट. क्लियर? सो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ देखो, अ फर्म may reduce the price of the product in one market
and observed buyer reactions and compare the sales resulting from the price reduction with the sales in the past. So example, मैंने वापी टाउन मार्केट, मेरे पास दो मार्केट है, एक वापी टाउन मार्केट है और दूसरा वापी जेडीसी मार्केट है. नाउ मैंने वापी टाउन मार्केट में प्राइस को रिड्यूस किया. प्रोडक्ट्स दोनों मार्केट में प्रोडक्ट सेम है, बट वापी मार्केट में प्राइस को क्या किया, रिड्यूस किया. ओके, एंड देन कंज्यूमर्स का रिस्पॉन्स, बिहेवियर जाना रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड प्राइस रिड्यूस करने से. एंड मैंने सेल्स को कंपेयर किया कि प्राइस रिड्यूस किया तो सेल्स कितना हुआ, एंड पास्ट में हमारा प्राइस था उसमें सेल्स क्या था, वो सेल्स को कंपेयर करके आई कैन मेक एन एस्टिमेट कि प्रोडक्ट का डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. क्लियर. से एग्जांपल कि मैंने प्राइस रिड्यूस किया और मैंने जाना कि सेल्स इंक्रीज हुआ एज कंपेयर टू द पास्ट. ओके, पास्ट में जो सेल्स था तो अभी प्रेजेंट में प्राइस रिड्यूस करने के सेल्स में इंक्रीज हुआ. सो आई कैन मेक एन एस्टिमेट कि इन फ्यूचर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज गोइंग टू राइज, बढ़ने वाला है. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कंट्रोल्ड मार्केट एक्सपेरिमेंट. सेम वे में अनदर एग्जांपल दे रहा हूं कि इफ द कंपनी टेकन फैक्टर दैट इज एडवर्टाइजमेंट. ओके, सो एडवर्टाइजमेंट सिलेक्ट किया एंड अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. सो कंपनी ने क्या एक मार्केट में एडवर्टाइजमेंट लॉन्च किया एंड देन कस्टमर्स का रिएक्शन आना कि कस्टमर्स प्रोडक्ट परचेज करते हैं या नहीं करते हैं. एंड देन कंपेयर किया सेल्स, पहले सेल्स क्या था एंड एडवर्टाइजमेंट करने के बाद सेल्स क्या हुआ. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्सपेरिमेंटेशन. Okay, so this method is called as what, controlled market experiment method. Now this method, remember one thing, this method it is useful only in a homogeneous market. That is, the selected market for the experiment should have the same background, taste, preference, income and etc. यानी पास्ट में जो मार्केट था वही मार्केट में आप एक्सपेरिमेंट करोगे बाय चेंजिंग द प्राइस, बाय चेंजिंग द एडवर्टाइजमेंट, तो ही आपका रिजल्ट एक्यूरेट आएगा. ओके, नाउ एडवांटेज क्या है, दिस एडवांटेज ऑफ दिस मेथड, इट प्रोवाइड्स अ रिलायबल एंड द रियलिस्टिक पिक्चर अबाउट द फ्यूचर डिमांड. ये मेथड आपको एकदम रिलायबल और रियलिस्टिक पिक्चर प्रोवाइड करता है. बिकॉज यहाँ पे आप क्या करते हो, आप एक्सपेरिमेंट करते हो, करंट एक्सपेरिमेंट करते हो एंड कंज्यूमर्स का रिस्पॉन्सेस को जानते हो. इसीलिए ये मेथड रिलायबल मेथड है एंड द रियलिस्टिक मेथड है, बिकॉज इट प्रोवाइड द रियल पिक्चर अबाउट द फ्यूचर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, इट इज एक्सपेंसिव मेथड एंड इट इज टाइम कंज्यूमिंग मेथड. व्हाई इट इज एक्सपेंसिव, बिकॉज यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है. ओके, प्राइस रिड्यूस करना, इंक्रीज करना, एडवर्टाइजमेंट लॉन्च करना, एडवर्टाइजमेंट नहीं करना, एंड एक्सपेरिमेंट किया जाता है. सो दिस मेथड इट इज एक्सपेंसिव मेथड एंड दिस मेथड इज व्हाट, टाइम कंज्यूमिंग मेथड. ओके, सो हियर हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, सर्वे मेथड. ओके, सो सर्वे मेथड में हम लोग ने फर्स्ट क्या पढ़ा, कंज्यूमर सर्वे मेथड. सो कंज्यूमर सर्वे मेथड में 3 कैटेगरी पढ़ा, कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड, सैंपल सर्वे मेथड एंड द एंड यूज मेथड. देन सेकंड पॉइंट कौन सा पढ़ा, कंट्रोल मार्केट कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, देन एक्सपर्ट्स ओपिनियन मेथड एंड फोर्थ कंट्रोल्ड मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड. क्लियर. ओके, सो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, दैट इज सर्वे मेथड. सो नेक्स्ट मेथड इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.